subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. This will be the last video of third chapter of 12th class microeconomy, that is money and banking. In previous two video, we have already discussed what is barter system, what is money meaning, then we have discussed function of money and evolution of money and demand and supply of money. Then second video, we have already understood what is commercial bank, the banking system, function of commercial bank, money creation and credit creation. Then last we have discussed control of money supply and credit. In today's video, we'll try to understand what is central bank, means RBI in India, what are their various functions performed by central bank, and how RBI control its money supply in market through various monetary policy by commercial bank. So let's begin our discussion. First we'll try to understand about Central Bank of India. Central Bank in India, like RBI, it is an apex body which main function is to control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country. And what is apex body? Here apex body means supreme body. Supreme body. And why it is called supreme body? Because it occupies topmost position in the monetary and banking system of the country. मतलब इंडिया के अंदर जो बैंकिंग से रिलेटेड होगा और जो मॉनेटरी से रिलेटेड होगा, जो टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है वो आरबीआई करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम बॉडी. एंड दिस आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1st April 1935 अंडर Reserve Bank of India Act 1934. So three things with respect to RBI you have to remember. First, it is an apex body which main function is control, operate, regulate and direct the entire banking system on the monetary structure of the country. And third is it was established in 1935 under RBI Act 1934. Now we'll see what are the various functions that performed by central bank or means RBI. Here RBI is currency authority, it has currency authority, and RBI act as banker to the government, that we'll discuss one by one. Third, RBI is a banker's bank and supervisor, means it act as a supervisor and supervise various different commercial bank. And fourth, it controller and money supply and credit. RBI act as a controller of money supply and credit. RBI use various tools like qualitative tools and quantitative tools. So in quantitative tools, we'll discuss like repo rate, bank rate, reserve repo rate, what is the open market operation, what is legal reserve requirement, then we'll see marginal requirement, then last we'll discuss moral suasion. So these are tools used by RBI to control money supply. And last we'll discuss custodian of foreign exchange reserve. So let's start one by one. First is currency authority. Central bank has sole authority for issue currency. अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में RBI has sole authority or you can say sole right for issuing paper currency notes, but except 1 rupees notes and coin. 1 rupees notes and coin which are issued by Financial Ministry, means Government of India. But if we talk about 2 rupees currency, 5 rupees currency, 10 rupees, 100, 50, 500 और अप टू 2000 डिनोमिनेशन, ये सब कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है. बट अगर 1 रुपीज़ करेंसी और कॉइन की बात करें तो कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर हम सिग्नेचर की बात करें, द 1 रुपीज़ नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी. बट इसके अलावा चाहे 2 रुपीज़ हो,
₹5 हो, ₹10 हो, ₹50, ₹100, ₹500 and $2,000 bear the signature of RBI governor. So here with respect to RBI, फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया, करेंसी अथॉरिटी. ही हैज़ सोल अथॉरिटी ऑफ हिज करेंसी, बट करेंसी में ₹1 नोट्स एंड कॉइन को छोड़ के जो अदर करेंसी है वो इशू कौन करता है? RBI करती है. लेकिन ₹1 नोट्स और कॉइन्स कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, which come under government of India. Next is banker to the government. The Reserve Bank of India act as banker, agent, financial advisor to the central government and state government. You can say both central government and state government. As a banker, it carries out all the banking business of government, like it maintain current account for keeping cash balance. It accept and makes payment for government. गवर्नमेंट का जो भी पेमेंट रिसिप्ट करना, एक्सेप्ट करना, वो कौन करेगा? RBI करेगी. एंड कैरी आउट एक्सचेंज रेट, रेमिटेंस एंड बैंकिंग ऑपरेशन. RBI also give loan and advance to the government for temporary period. एंड RBI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट, कि गवर्नमेंट का जो भी डेट मीन्स बोथ इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, जो हम आगे फिजिकल पॉलिसी में डिस्कस करेंगे. जो भी इंटरनल डेट और जो एक्सटर्नल डेट है वो सबको मैनेज करना किसका काम है? RBI के काम है. एंड गवर्नमेंट का जो भी सेंट्रल फाइनेंशियल एडवाइजरी होगा वो कौन होगा? RBI होगा. सो RBI ऑल्सो एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट and both state government. So here we see currency authority, the main function, first function, and second is banker to the government. The third function of RBI is bankers, bank and supervisor. See, there are a number of commercial bank in India, so there should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. So here RBI in India act as regulator, supervisor, the commercial bank for their proper functioning. And RBI being a apex body, as we have already discussed in first slide, apex body or you can say supreme body, act as banker to the other banks. Here other banks means commercial bank. So जो भी commercial bank वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना किसका काम है? RBI का काम है. एंड बीइंग एस एपेक्स बॉडी, RBI के पास 3 फंक्शन है. फर्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. हियर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मीन्स कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए शेयरर विद सेंट्रल बैंक. मीन्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था और आगे भी डिस्कस करेंगे, एक NDTL होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़. नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बैंक है ICICI. अब ICICI के पास 2 पर्सन आए, यहाँ पर 3 पर्सन आए, A, B, C. A ने ₹100 डिपॉजिट किया, B ने 200 डिपॉजिट किया और 3 ने ₹300, C ने 300 डिपॉजिट किया. सो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 600. एंड यहाँ पर कोई D पर्सन आया, इसने अपने अकाउंट से कितना विड्रॉ कर लिया? ₹200 विड्रॉ कर लिया. तो यार 600 से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा. सो यार 400 जो होगा वो क्या है? NDTL. और बैंक क्या कहती है, RBI क्या कहते हैं कि जो आपका 400 है ये आपका NDTL है, इसका आपको 3% आपको क्या रखना पड़ेगा? आज ए CRR के तौर पे कहाँ रखना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा. सो इसको कहते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. एंड सेकंड इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्स लाइक इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो कमर्शियल बैंक जब भी उनके पास पैसे कम पड़ जाता है तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाते हैं? RBI के पास जाते हैं. इसलिए RBI को क्या कहा जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. एंड थर्ड फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस. हियर क्लियरिंग हाउस मीन्स जितना भी बैंक है कमर्शियल बैंक, इफ यू टॉक अबाउट ICICI, HDFC, एक्सिस या अदर बैंक, जितने भी बैंक है
इन सबका अकाउंट कहाँ किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो इनके आपस में जो भी ट्रांजैक्शन करना है, किसी को कुछ पैसे लेना है देना है जो भी है, ये सब किसके हाथ होगा, ये आरबीआई के हाथ होगा। आरबीआई ही इनका क्लियरिंग करेगा सारे। तो इसलिए कहते हैं क्लियरिंग हाउस। सो ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। और जो भी इनके बीच में आपस में पैसे जो भी डेबिट क्रेडिट करना है वो किसको थ्रू करेंगे, आरबीआई के थ्रू करेंगे। तो ये थर्ड फंक्शन हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई, दैट इज बैंकर्स टू द बैंक और सुपरवाइजर। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई is to control of money supply and credit. See, RBI is empowered to regulate the money supply in the economy through their monetary policy. And what is monetary policy? Monetary policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control or money supply. सो आरबीआई क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। एज द आरबीआई हैज सोल मोनोपोली इन करेंसी इशूज, इट कंट्रोल क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड फॉर दिस आरबीआई यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लाइक रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, open market operation, in short we called as OMO, legal reserve rate ratio और marginal requirement और moral situation। सो ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होता है और इस ये आरबीआई कैसे यूज़ करती है अपने मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सी, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो भी टूल्स हैं ये यूज करने से पहले दो कंसेप्ट हम समझते हैं। वन इज इन्फ्लेशन एंड अनदर इज डिफ्लेशन। व्हेन इन्फ्लेशन occurs when demand is greater than supply, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। से फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, इसके मार्केट में सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब इस इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड ज़्यादा होता है, और डिमांड कब ज़्यादा होता है, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होता है। जब पैसे ज़्यादा होता है तो डिमांड होगा, डिमांड होने से अगर सप्लाई कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, इस लिक्विडिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, अपने टूल्स यूज़ करेगा। कौन सा टूल्स यूज़ करेगा, लाइक रेपो रेट और बैंक रेट, ये जितने टूल्स यूज़ करेगा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सेम चीज़ डिफ्लेशन कब होगा, जब मनी सप्लाई, मान लो एज्यूम कर लेते इसका अपोजिट डिक्रीज हो गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई नहीं है मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो XYZ आइटम था इसका सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। मार्केट में सामान ज़्यादा है, लोगों के पास डिमांड नहीं है, क्यों नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पर भी आरबीआई क्या कर सकती है, मार्केट में मनी को लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ कर सकती है। तो क्यों करती है, मनी सप्लाई को कैसे करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं ये वेरियस टूल्स यूज करके। फर्स्ट विल सी रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट at which central bank, here central bank means RBI, lends money to commercial bank like Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, SBI Bank to meet their short term needs. So three things you have to remember with respect to repo rate. One is it is used by central bank to lend money to commercial bank and for short term period. And repo rate means, say for example यहाँ पे हम लेते हैं आरबीआई और यहाँ पे लेते हैं हम कोई भी बैंक लेते हैं एक्सिस बैंक। सो आरबीआई को लेंड करना है किसको, एक्सिस बैंक को पैसे देना है, और एज्यूम कर लेते हैं इन्होंने 100 रुपीज़ दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 रुपीज़ दिया, और कितने परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से लेंड किया आरबीआई ने। सो रेपो रेट अभी एज्यूम कर लेते हैं जो 4% है वो न्यूट्रल है, नॉर्मल है। अब ये प्लस कर दिया, इंक्रीज किया मतलब प्लस किया, प्लस किया मतलब क्या है, 4% से 5% कर दिया या 6% कर दिया।
सो परसेंट इंक्रीज हो गया। रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एक्सिस बैंक है इनको क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक बोरो करती है कहाँ से, आरबीआई से। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक इंक्रीज हो जाएगा। कमर्शियल अगर एक्सिस बैंक फर्दर आगे लोगों को कितने परसेंट में देती थी, मान लो एज्यूम कर लेते हैं 3% के हिसाब से, या फिर मान लो नहीं ज़्यादा होगा ना, 4% से एज्यूम कर लेते, पहले 6% देती थी, अब ये 4% से 6% आएगा, तो ये 6% से आगे क्या होगा, 7% 8% दे देंगे अपना मार्जिन रख के। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग जो कमर्शियल दैट मीन्स एक्सिस बैंक के जो पैसे लेते थे अब क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक इंक्रीज हो जाएगा। लोग जो कमर्शियल बैंक से पैसे लेते थे अब उनका कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगा कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट। यहाँ पर कमर्शियल बैंक जैसे मैंने कहा कि पहले 6% देते थे, अब 8% कर दिया, तो उनका खर्चा बढ़ गया क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। जब कमर्शियल बैंक का खर्चा बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, पैसे कम लेंगे। सो डिस्करेज बोरो फ्रॉम टेकिंग लोन। लोग पहले जो 6% लेते थे अब 8% मिल रहा लोगों को, तो लोग पैसे कम लेंगे, तो ये क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। जब इनका बोरोर डिस्करेज होगा, दैट मीन्स डिमांड कम होगा पैसे का, तो रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। अब कमर्शियल बैंक मीन्स एक्सिस बैंक पास जो एबिलिटी होगा क्रेडिट क्रिएट करने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ से पैसे नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह से मार्केट में क्या हुआ, मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो गया। रेपो रेट इंक्रीज करने से मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके ऑपोजिट में अगर हम बात करें रेपो रेट डिक्रीज का, एक मिनट थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। अगर मान लो एज्यूम कर लेते हैं रेपो रेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मीन्स सेम चीज आरबीआई लो और इधर लिया एक्सिस बैंक। सो रेपो रेट डिक्रीज किया मतलब से जैसे कि पहले न्यूट्रल था 4%, अब इन्होंने कर दिया 2%, आरबीआई ने 2% कर दिया। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक को पहले 6% में ले रहे थे या फिर 8% ले रहे थे, इसको कॉस्ट कम पड़ जाएगा क्योंकि अभी 4% से कितना आगे, 2% पे आ गए। सो कमर्शियल बैंक डिक्रीज देयर लेंडिंग रेट। कमर्शियल बैंक आगे एक्सिस बैंक जो है वो लोगों को क्या करेंगे, कम रेट पे देंगे लोन। जैसे कि यहाँ से 2% लिया, हो सकता है कि अपने मार्जिन रख के 4% में दे दे, तो लोगों को पहले जो 8% में लोन मिलता था अब 4% में मिल जाएगा। सो लोगों के पास क्या होगा, कमर्शियल बैंक एनकरेज बोरो फ्रॉम टेकिंग लोन। पीपल क्या होंगे, पीपल को इनकरेज किया जाएगा कि बैंक से आप लोन लो, बोरो करो। जब लोग पैसे लेंगे तो कमर्शियल बैंक क्या होगा, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रेडिट क्रिएट। यहाँ पर कमर्शियल बैंक का जो एबिलिटी है क्रेडिट क्रिएशन का वो इंक्रीज हो गया। सो इससे क्या समझ में आया कि जब आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करती है तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मतलब इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इन्फ्लेशन को आप डिफ्लेशन कर सकते हो। जब रेपो रेट इंक्रीज कर दोगे तो मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये वाइस वर्सा है, रेपो रेट का वाइस वर्सा क्या है, इंक्रीज रेपो रेट का वाइस वर्सा क्या है, डिक्रीज रेपो रेट। और क्या होगा कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, सॉरी रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। सो क्या है, अभी हमने देखा रेपो रेट से किस तरह से मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है और डिक्रीज किया जाता है। अब हम चलते हैं बैंक रेट की तरफ। नेक्स्ट इज बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। सेम चीज़ जो हमने रेपो रेट में देखा था, सेम चीज़ बैंक रेट पे है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पर शॉर्ट टर्म देखा था ये, यहाँ पर हमने देखो रेपो रेट में क्या देखा था, शॉर्ट टर्म के लिए था, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए है। बट लॉन्ग टर्म क्या है, जैसे कि मोर देन 1 ईयर्स। ठीक है। सो बैंक रेट में क्या होगा, जैसे कि सिमिलरली सेम एग्जांपल लो, बैंक में जैसे कि 4% जो है नॉर्मल रेट था, आगे बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, मीन्स कितना कर दिया, बढ़ा दिया, 6% कर दिया। तो आगे एक्सिस बैंक का भी नॉर्मल रेट कितना था, 5%, और ये भी बढ़ा देंगे 2% मीन्स 7% कर देंगे। तो लोगों को क्या होगा, कॉस्ट में मिल जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा लोगों का।
क्योंकि कमर्शियल बैंक का कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया था, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक इंक्रीज हो जाएगा। कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट, यहाँ पर 5% से उन्होंने क्या किया 6-7% कर दिया, जिसकी वजह से डिस्करेज बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन। जो लोग हैं वो लोन कम लेना शुरू कर देंगे। अब जब लोग कम पैसे लेंगे, सो रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। सेम थिंग होगा जो हमने रेपो रेट में देखा था। एंड वाइस वर्सा, जैसे कि बैंक रेट अगर डिक्रीज हो जाएगा, अगर कम कर दिया 4% 2% कर दिया, यहाँ पर हमने बैंक रेट इंक्रीज करने से क्या देखा था, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा था क्योंकि लोग पैसे ले नहीं रहे थे। बैंक रेट जब कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक ये भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 7% से दोबारा कितने आ जाएंगे 5% में आ जाएंगे, और जब फिर नॉर्मल जो 5 था उससे कम आके 3% में आ जाएंगे। कमर्शियल बैंक डिक्रीज देयर लेंडिंग रेट, जब कमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास लोग पैसे ज़्यादा लेंगे। सो एनकरेज बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन, लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि आप पैसे लो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो लोग पैसे लेंगे। सो इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रेडिट। कमर्शियल बैंक मीन्स एक्सिस बैंक ने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज कर दिया। जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो गया दैट मीन्स क्या है कि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसे आ जाएगा जब लोगों के पास, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन से कहाँ आ जाएंगे, वो डिफ्लेशन में आ जाएंगे। बैंक रेट कम करने से डिफ्लेशन हो जाएगा, और बैंक रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। इन्फ्लेशन मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन था वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। सो ये हमने देखा रेपो रेट एंड बैंक रेट। थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट का अपोजिट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। इट एग्जैक्ट टू अपोजिट रेपो रेट। रेपो रेट में हमने क्या देखा था कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को, एक्सिस बैंक को लोन देती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में देती है, नॉर्मल हमने 4% देखा था, वो क्या था, रेपो रेट। अब मीन्स यहाँ पर एक्सिस बैंक फर्दर जो लोगों को पैसे देंगे डिपेंड करता है कि एक्सिस बैंक आगे आरबीआई से कितने परसेंट लोन पे लेती है। अगर एक्सिस बैंक यहाँ से आरबीआई से 4% लोन पे लिया, तो यहाँ पर वो भी अपना परसेंट रख के एज्यूम कर लेते 6% के हिसाब से लोगों को देंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास पैसे जा रहा है। अब मान लो मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है, मीन्स लोगों के पास जो पैसा है वो एक्सिस बैंक के पास आ जाएगा, और एक्सिस बैंक के जो पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आएगा। कब आएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई क्या है, एक्सिस बैंक के पास जो भी पैसा होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा होगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कब अट्रैक्ट करेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा आरबीआई। और रिवर्स रेपो रेट एनकरेज द कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर आरबीआई मान लो, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में क्या देखा था कि आरबीआई पे कर रहा है, आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्सिस को दे रहा है और एक्सिस बैंक इसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। लेकिन अब आरबीआई क्या कर रहा है कि आपके पास जो पैसा है वो मैं 6% के हिसाब से या फिर 8% के हिसाब से मैं आपसे पैसे ले लूँगा। मतलब एक्सिस बैंक से कौन ले लेगा, आरबीआई से ले लेगा, एक्सिस बैंक से आरबीआई ले लेगा। आरबीआई ले लेगा मतलब एक्सिस बैंक को लेगा कि नहीं, यहाँ पर लोगों को मैं 6% के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आरबीआई मुझे 8% दे रहा है, तो एक्सिस बैंक क्या होगा कि आरबीआई में सारा पैसे डिपॉजिट कर देगा। अब एक्सिस बैंक जब आरबीआई के पास सब पैसे डिपॉजिट कर देगा, तो फिर लोगों के पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। मीन्स मनी सप्लाई यहाँ से कहाँ हो गया, एक्सिस बैंक से कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया। सो आरबीआई क्या किया, आपने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करके जो एक्सिस बैंक के पास पैसा था वो अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, जिससे मनी सप्लाई क्या हुआ, डिक्रीज हो गया मार्केट। और मनी सप्लाई डिक्रीज होने से अगेन इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? इट इज रेट ऑफ एग्जैक्ट टू अपोजिट रेपो रेट। रेपो रेट में हमने क्या देखा था कि आरबीआई पैसे देती है एक्सिस बैंक को, और एक्सिस बैंक उसके बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट देती है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि एक्सिस बैंक पैसे देगी किसको, आरबीआई को, और आरबीआई उसके बदले में क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इससे क्या होगा, एक्सिस बैंक के पास जो भी लिक्विडिटी होगी वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। ये हमने देखा रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इट रिफर्स टू
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। कि आरबीआई जब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको सेल और परचेज करती है उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज क्यों करती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सब कुछ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी में लिखा हुआ कि इस सिक्योरिटी को आप परचेज कर लो और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो एज्यूम कर लेते हैं हाई होगा, मान लो 5% है। तो लोग क्या करेंगे या कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देगी। और इशू किसने किया? आरबीआई ने इशू किया। सो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा 5% है। सो कमर्शियल बैंक कहाँ करेंगे? यहाँ पर पैसे डिपॉजिट कर देंगे और कमर्शियल बैंक का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज़ है वो क्या कर लिया, इन्होंने परचेज कर लिया। परचेज कर लिया मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी जो है किसके पास है? आरबीआई के पास है। अब लिक्विडिटी और आरबीआई पैसे, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। सो अभी हमें क्या समझ में आया कि जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई हमने देखा कमर्शियल बैंक से कहाँ आ गया, आरबीआई के पास आ गया। एंड वाइस वर्सा, जैसे अगर मान लो परचेज करना हो आरबीआई को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया था उसको वापस परचेज करना हो, परचेज करने से क्या होगा, अगेन जो लोग गवर्नमेंट के पास पैसा था, दैट मीन्स जो आरबीआई के पास पैसा था वो किसके पास चला जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मनी सप्लाई इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये डायरेक्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जो हमने पहले कंसेप्ट देखा था रेपो रेट एंड बैंक रेट में। सो आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू सेल और परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो और ट्रेजरी बिल हो वो सेल करना, परचेज करना किसके पास अथॉरिटी है, आरबीआई के पास। और किस तरह से आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने से मनी सप्लाई डिक्रीज होगा वो हमने देखा। और मार्केट में अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो अपने मार्केट में इशू किया था आरबीआई ने वो अपने पास मंगा लो और मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दो। तो इस तरह से हमने देखा मनी सप्लाई को भी कंट्रोल किया जा सकता थ्रू रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। Now next move to legal reserve requirement, that is LRR. According to legal reserve requirement, commercial banks are obliged to maintain reserves and it is very quick and direct method for controlling the credit creating power of commercial bank. Means जितने भी commercial बैंक है उनको अगर क्विक एंड डायरेक्ट मेथड से मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मीन्स इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है, तो कमर्शियल बैंक को लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व ऑन 2 अकाउंट्स, दैट इज CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो इन दोनों अकाउंट में कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, उनका रिजर्व जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ये CRR और SLR होता क्या चीज़? According to cash reserve ratio, it refers to minimum percentage of net demand time liabilities to kept by commercial bank with central bank. Your central bank is important. जो भी commercial बैंक के पास पैसा आएगा, जो भी NDTL का minimum percentage होगा वो किसके पास रखेंगे, सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई बैंक ले लिया, एग्जांपल से जैसे कि HDFC ले लिया और HDFC में 3% आते हैं, A, B, C। अब ये 3% जो है HDFC में आते हैं और ये इन्होंने 500 डिपॉजिट किया, A, B ने 500 डिपॉजिट किया और C ने 300 डिपॉजिट किया। तो टोटल डिपॉजिट कितना है? टोटल डिपॉजिट इज़ 1300। और यहाँ पर D% कोई आया और अपना विड्रॉ कर लिया, से फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया अपने अकाउंट से, तो 1300 माइनस 300 1000 हो गया NDTL। सो इस अकॉर्डिंग टू RBI इस जो NDTL होगा इसका मिनिमम 3% आपको कहाँ रखना पड़ेगा, एज ए CRR रखना पड़ेगा, मीन्स ये बैंक के पास रखना पड़ेगा। मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 3% मीन्स 30 रुपीज़। तो जो 970 रुपीज़ है वो आपको मार्केट में आप दे सकते हो। सो अगर NDTL
नेट डिमांड टाइम लिबिलिटीज़ 3% है, अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाता है अप टू 4% किया जाता है, दैट मीन्स पहले जो 30% रखा जाता अब वो 40 रुपीज़ रखा जाएगा। पहले 30 रुपीज़ रखा जाता था, अब 40 रुपीज़ है। तो अब क्या होगा, मार्केट में पैसे देने के लिए कितने बचेंगे, 960 रुपीज़। मीन्स क्या है, जैसे ही हम CRR इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम 3% से 4% एंड इंक्रीज CRR रिड्यूस द एक्सेस ऑफ रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड लिमिट देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। कि जैसे CRR RBI ने इंक्रीज कर दिया 3% टू 4% और 4% टू 5% कर देगा, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व होगा मार्केट में इशू करने के लिए वो कम हो जाएगा। सो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि CRR को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर CRR हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। अगर 3% से मान लो 1% कर दिया तो अब कितना है, 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ मतलब मीन्स मार्केट में कितने देने पड़ेंगे, अभी मार्केट में इनके पास रह जाएगा देने के लिए 990 रुपीज़। सो ये हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, CRR में बैंक को, कमर्शियल बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी प्रॉफिट और नहीं करते कमर्शियल बैंक। बट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, it refers to maintain a percentage of NDTL which commercial bank are required to maintain themselves. मीन्स जो भी कमर्शियल बैंक है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 1000 का 3% है, तो सेम चीज़ जो NDTL होगा, जो टोटल डिपॉजिट होगा उसका 18% क्या होगा, SLR होगा। मीन्स 18% SLR और 3% क्या है, CRR। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 21%, मीन्स 210 रुपीज़। अब बचा कितना है, 790 रुपीज़। ये मार्केट में इशू, मतलब कमर्शियल बैंक पास अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में इशू करने के लिए। अब इंक्रीज, अगर SLR भी हम इंक्रीज कर देंगे तो सेम चीज़ 21 से ले, मान एज्यूम कर लेते हैं 18% से हमने क्या कर दिया, 20% कर दिया। 20% SLR और 3% क्या है, CRR। तो टोटल 23% हो जाएगा। सो 23% मीन्स मार्केट में अब कितने पैसे बचेंगे देने के लिए, 770 रुपीज़। सो SLR भी इंक्रीज करने से मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे कि SLR डिक्रीज करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो मेथड से कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो भी SLR रखेंगे वो कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, वो गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, और वो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में भी रख सकते हैं। सो इस फॉर्म में अगर वो पैसे रखेंगे तो इनको प्रॉफिट ऑन होगा। लेकिन जो पैसे CRR बैंक के पास रखेंगे, सेंट्रल बैंक के पास कैश के फॉर्म में रखेंगे, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। सो ये डिफरेंस है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। So far we have understood what is repo rate, what is bank rate, what is reverse repo rate, what is open market operation. Then fifth we have discussed LRR, that is legal reserve requirement. Under LRR we have discussed that is cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Now next move to marginal requirement. See, marginal requirement refers to difference between amount of loan and market value of the security offered by borrower against loan. Say for example, there is a person A के पास कोई भी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज़, और ये बैंक के पास जाता है, लोन मांगता है। बट अकॉर्डिंग टू आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या कहता है कि जो भी मार्केट वैल्यू होगा, लोन जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू होगी उसका 40% आपको अपने पास रखना है, और जो 60% बचेगा वो आपको लोन देना है। मीन्स अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक है, कोई बैंक है, एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसने दिया, A% ने दिया, और एक्सिस बैंक किसका रूल फॉलो करेगा, आरबीआई के रूल फॉलो करेगा, और आरबीआई के हिसाब से 40% क्या रखना है, जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू होगी 40% अपने पास रखना है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और 60% देगा। तो इस पर्सन को कितने मिलेंगे, 600 रुपीज़ मिलेंगे। अब इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसिंग द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ मनी सप्लाई।
अगर 40% से आरबीआई ने कहा कि नहीं 40 नहीं, अब आपको 50% रखना है और 50% आपको मार्केट में देना है, तो यहाँ पर कितने पैसे बचेंगे? 500 रुपीज़ मिलेंगे ए पर्सन को। एंड फॉल इन मार्जिन एनकरेज द पीपल ऑफ बोरो मोर, मीन्स 40% से अब कहा कि नहीं अब हम 20% रखेंगे और जो 80% बचेगा वो हम कैश पे दे देंगे। तो इस पर्सन को कितने मिलेंगे? 1000 का 800 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे मार्जिन इंक्रीज होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे मार्जिन क्या होगा? फॉल हो जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। एंड आरबीआई में प्रेस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, कि जो भी पर्सन होगा डिफरेंट पर्सन होगा और डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी होगी उसके पास, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या है? मार्जिन फिक्स करता है। सो इस तरह से हमने देखा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोअर्स अगेंस्ट द लोन, कि जो भी ए पर्सन है, जो भी उसके सिक्योरिटी की वैल्यू लेके आया और उसके हिसाब से जो भी कमर्शियल बैंक का मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो अपने पास रखेंगे और जो रेस्ट बचेगा वो ए पर्सन को एज ए कैश दे देंगे। तो ये हमने समझा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। द लास्ट पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज मोरल सुएशन। अकॉर्डिंग टू मोरल सुएशन, दिस इज a combination of persuasion and pressure that central bank means RBI apply on other banks means commerce bank in order to get them act in manner in line with its policy. Means say for example there is a bank, कोई भी बैंक है, यहाँ पर एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक को क्या कहा गया, जैसे कि इससे पहले हमने देखा मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई ने कहा कि आपको 40% रखना है, ठीक है, लेकिन एक्सिस बैंक जो है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं रख रहा है। आरबीआई एक्सिस बैंक कितना रख रहा है? 60% रख रहा है, या फिर मान लो 30% रख रहा है, सो दैट कि मार्केट में वो ज़्यादा लोन दे सके और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन ये आरबीआई का जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी है, उसका वायलेशन है। सो आरबीआई क्या करेगा? इसको उनको प्रेशर करेगा और उनको बताएगा कि ये आपको नहीं करना है और जो भी हम रूल एंड रेगुलेशन बनाए, जो भी पॉलिसी बनाए, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। सो व्हाट आरबीआई विल डू? इट मोरल सुएशन इज एक्सरसाइज थ्रू द डिस्कशन, लेटर्स, स्पीचेस एंड हिंट्स टू बैंक्स, कि आरबीआई जो गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे? जो भी बैंक के जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक है उनके सीईओ के साथ डिस्कशन करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे और उनको स्पीचेस देंगे और जो भी उनका पॉलिसी प्रोग्राम होगा कि उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उनको फॉलो करना है। सो ये है मोरल सुएशन। सो इस तरह से हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखा, फर्स्ट रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशियो और रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मोरल सुएशन। तो इस तरह से हमने सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर लिया। बस एक मतलब वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब भी मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो एंड डिमांड ज़्यादा हो, गुड्स कमी है, डिमांड ज़्यादा है, वाई डिमांड इज़ मोर? पीपल हैव मोर मनी, मनी मार्केट में ज़्यादा है, मनी मार्केट में ज़्यादा है इसलिए डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और गुड्स कमी है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन अकर हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। और मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई किसके थ्रू मनी सप्लाई कम कर सकता है? अभी जो हमने देखा रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी वेरियस टूल्स यूज़ करके मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जा सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इंक्रीज और डिक्रीज़ कैसे करना है? इन टूल्स की मदद से आरबीआई क्या कर सकती है? मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। सो इस तरह से हमने सेंट्रल बैंक का पूरा फंक्शन हमने पढ़ लिया। सेंट्रल बैंक क्या है, उनका बैंकिंग सिस्टम क्या है और किस तरह से वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करते डिक्रीज करते, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। If you want to get PDF of this video, you can join our Telegram channel and the link of the channel is given our description box. Thank you so much.